Good morning everyone and welcome to the class. We are doing this revision of this chapter, Constitution as a Living Document, and under this chapter we were discussing the concept of basic structure of the Constitution. We have discussed the process of amendment which is given in the Article 368 of the Indian Constitution, and after that we were discussing basic structure of the Constitution. There are some very important points regarding this basic structure. First of all, we must always keep in mind that this basic structure is nowhere mentioned in the Constitution. Second thing, this basic structure, concept of basic structure emerged when there was judgment given in the Keswanand Bharti case in the year 1973, and this judgment is very much important because it said that the Parliament has no authority to amend some parts of the Constitution. There are some parts of the Constitution which are related to the basic structure of the Constitution and they cannot be amended by the Parliament. They are unamendable, है ना. And इसमें ये भी कहा गया कि there cannot be a list of basic structure. It is the final authority lies with the judiciary to decide whether a structure comes under the basic structure or not, है ना. जुडिशरी के पास ये पावर है कि अगर उसको ये लगता है, it feels that any act of the Parliament or any amendment of the Parliament is violating the basic structure of the Constitution, then it can make that amendment null and void. Null and void का मतलब उसको खत्म कर देगी कि वो अमेंडमेंट को माना ही नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज against the basic structure of the Constitution. It is violating the basic structure of the Constitution and the judiciary has the authority to do this, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं. और ये जो basic structure का concept आया, actually this concept has, we have discussed this, कि actually this concept has evolved the Constitution. हमारे Constitution का इसी कारण evolution हुआ और Constitution ने respond किया towards the circumstances, which is the characteristic of a living thing, and that is why it is called living document. It's not a dead document कि आप कुछ भी इस पे कर दीजिए, इस पर ये कोई react नहीं करेगा. It reacted through the judiciary. So the judiciary is playing the role of the protector of the Constitution. Judiciary is playing the role of the interpreter of the Constitution, है ना. And in this context, जिस context में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो basic structure का concept है, actually इसने ये कहा कि जो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच अवेयर दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की बात थी, इसको इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने एक्चुअली और भी ज़्यादा कंसोलिडेट किया, उसको और भी ज़्यादा सही बनाया इस बैलेंस को. क्योंकि अब क्या हो गया कि कुछ पार्ट ऐसे हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आप अमेंड कर ही नहीं सकते हो. तो ये क्या हो गया, ये रिजिडिटी को बता रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें रिजिडिटी, ये एक रिजिड नेचर, एक उसका एलिमेंट आ गया कि देयर आर सम पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड, जिनको अमेंडमेंट जिनमें लाया ही नहीं जा सकता है. तो ये एक इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं और इसी कारण हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है. इसमें एक और अच्छी इंफॉर्मेशन की बात है जिससे कि आपको you can understand the importance of this doctrine of basic structure. What we find that in the year 2000 the government set up a commission. Okay, this commission was set up by the government to review the working of the constitution. ठीक है. एंड इसके चेयरमैन कौन थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वेंकट चलैया. ठीक है. तो ये जो कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग को आपको रिव्यू करना है. ठीक है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000 and the
function assigned to it was to review the working of the constitution. And who was the head of this commission? The head was the retired Chief Justice of the Supreme Court, and his name is Justice Venkat Chalaiya. ओके, जस्टिस वेंकट चलैया के चेयरमैनशिप में ये कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से इन द ईयर 2000. एंड व्हेन द गवर्नमेंट अपॉइंटेड दिस कमीशन, देयर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ दिस कमीशन, बिकॉज एक तरह से ये अपोजिशन के मन में, जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी एट दैट टाइम, उसके मन में ये एक एप्रीहेंशन हमेशा रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है इट में मिसयूज इट्स पावर. इस तरह का एप्रीहेंशन रख के ही काम होता है. दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी रियल. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इस तरह के एप्रीहेंशंस होने चाहिए ताकि उन पर चेक हमेशा बनी रहे. तो इस कारण से जो अपोजिशन पार्टीज थी, मीडिया थी, बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हुआ कि आखिर इस कमीशन को सेटअप करने की ज़रूरत क्या थी. ठीक है, बट कमीशन जो थी उसने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, वो उसका रिकमेंडेशन यही रहा कि जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का जो भी केशवानंद भारती के मैटर में जो भी वर्डिक्ट आया, दैट इज स्टिल रेलिवेंट एंड देयर इज नो नीड टू चेंज इन दैट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय दिस केशवानंद भारती के मैटर में जो दिया गया था, उसको कुछ सी भी तरह से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और बेसिक स्ट्रक्चर का जो रेलेवेंस है वो पहले था, वही आज भी आगे भी बने रहना चाहिए. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट सेज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि एक कमीशन अपॉइंट होती है इन ऑर्डर टू सी द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कमीशन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को सही कहा. तो हमने ये पहले भी कहा है कि आज अगर देखा जाए तो केशवानंद भारती का जो वो था वर्डिक्ट था, उसको आए हुए करीब करीब हम कह सकते हैं 50 ईयर्स, अराउंड 50 ईयर्स, 47 ईयर्स हो चुके हैं, और आज भी हम उसको वही अहमियत देते हैं. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन चुका है. अब हम इसके बिना वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट दिस वर्डिक्ट ऑफ केशवानंद भारती. दिस इज द इम्पोर्टेंस. ओके, एंड नाउ वी विल सी दैट कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जहाँ पर कि हमने देखा कि जुडिशियरी ने इंटरफेयर किया, जुडिशियरी ने जो इंटरप्रिटेशन किया, उसके कारण क्या हुआ कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हमारी चेंज हो गई, और दैट इज़ नॉट टेम्पररी, दैट इज़ फॉर परमानेंट. जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न था, और बाकी किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो उनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया जा सकता है उनके लिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन में था. और इसी को यूज़ करते हुए 1980 में क्या हुआ कि मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया. गवर्नमेंट ने, जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन अपॉइंट किया, और मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया, ये मंडल कमीशन 1979 में अपॉइंट हुई थी. ठीक है, 79 में जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था, जिसका ये काम जिसको दिया गया कि आप ये देखिए कि जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं इंडिया के, क्लास और कास्ट यहाँ पर सेम हो जाएगा. इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में, बहुत डिटेल में क्लास 9 में पढ़ चुका है ना. तो मंडल कमीशन को क्या काम दिया गया था कि वो ये देखे जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं. एक्चुअली कास्ट और क्लास को सिनोनिम कर दिया गया, क्योंकि क्लास की बेसिस पे चीज़ें नहीं हुई, कास्ट की बेसिस पे ही उन्होंने अपना काम किया था. तो जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉपर है
या नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर है या नहीं, ये देखिए। अगर आपको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, देन यू सजेस्ट मेजर्स, यू सजेस्ट सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें मंडल कमीशन ने जो काम किया, अपना उन्होंने सर्च किया, सारा कुछ किया, और वो उनका रिकमेंडेशन ये था कि नहीं, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन में जितना उनका प्रोपोर्शन है उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। So this commission recommended so many things, and one of the most important recommendation of this commission was to give reservation of seats in the educational institutes and reservation in government jobs। ये recommendation मंडल कमीशन ने 1980 में दे दिया था कि इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, इनके लिए आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिजर्वेशन की जब बात हुई, इसको तो उस समय बस ये रिकमेंडेशन आया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगेन इन द ईयर 1991 व्हेन दिस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जब आई, तो उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और जब इम्प्लीमेंट किया तो पूरे कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। मंडल इशू जिसको हम कहते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे स्पेशली जनरल कैटेगरी के, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, सेल्फ इमोलेशन तक की घटनाएं हुई। तो मैटर गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो ये दिया कि नहीं, रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर द बैकवर्ड क्लास, दे आर द ऑप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो दे मस्ट बी गिवन रिजर्वेशन। बट जो रिजर्वेशन रिजर्व सीट्स हैं, मतलब SC ST प्लस OBC, इन तीनों को मिला करके इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, क्योंकि जो रिकमेंडेशन उसका था मंडल कमीशन का, अगर उसको मान लिया जाता उसी तरह से, तो फिर इनका जो रिजर्वेशन हो रहा था वो 50 से ऊपर चला जाता, 50% से ऊपर चला जाता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि जो रिजर्वेशन होगा फॉर SC, फॉर STs, फॉर OBC, ये सारे रिजर्वेशन मिला करके 50% से अबव नहीं जाना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीट्स मस्ट बी देयर फॉर द जनरल कैटेगरी। और ये इस वर्डिक्ट को आज तक बिल्कुल फॉलो किया जाता है, इसके अगेंस्ट कोई भी कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती है कि किसी तरह से कुछ चेंज किया जाए। तो ये क्या है, नाउ इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ प्रिंसिपल, और वी कैन से इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि रिजर्वेशन 50% से नहीं बढ़ेगा। ये एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से हमारा इवॉल्व हो रहा है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द सीट रिजर्व फॉर SC STs और OBC, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट में इस चीज को कहा। तो ये बहुत सही चीज है, कम से कम 50% सीट तो उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आया, और ये दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया जुडिशियरी ने इसी समय में। इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से केस हुआ था, ये जो OBCs वाला जो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने वाला जो केस था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट दिया, वो ये था कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर क्या हुआ कि जो OBCs में जो अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं देना है, और इस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को आज भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, आज भी उसको माना जा रहा है, और ये भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया है। और इसी क्रीमी लेयर से इंस्पायर होकर के हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो गवर्नमेंट है उन्होंने EWS का एक नया कैटेगरी क्रिएट कर दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन गया है। Though they are not a part of the constitution, still they become a part of the constitution because of judicial interpretation. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद
हम और भी कुछ जो है वो हम देखेंगे, जैसे कि जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन से, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ हमें दिया गया था। राइट टू लाइफ के अंदर ये है कि हमें आर्बिट्रेरली कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है ना। अरेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। बट राइट टू लाइफ हमारा बहुत काफ़ी नैरो था। अगर स्कोप देखा जाए राइट टू लाइफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, दैट वाज वेरी नैरो। और हमारे जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन से इसको काफ़ी ब्रॉडन किया गया। जैसे आज के समय में हम क्या देखते हैं, राइट टू लाइफ के अंदर हमारा राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। ये भी जो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उससे ये हमारे इसका एक हिस्सा बन गए हैं, हमारे राइट टू लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। इसी तरह से राइट टू शेल्टर, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, बट थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से हमें वो भी नहीं दिया गया है जिसको हम कहते हैं राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बट इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या है, दिस इज द चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा रहा है, स्टिल इट इज चेंजिंग थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एंड यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। मतलब कि जो जैसे सर्कमस्टांस है उसके अनुसार ये अडेप्ट हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है ना। इंसान की सबसे बड़ी जो क्वालिटी हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन ही तो क्वालिटी होती है ना। हम जैसे सर्कमस्टांस होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसा सर्कमस्टांस होता है, जैसा एनवायरनमेंट हमारे साथ जो एक्शन करता है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं और हमारा इवोल्यूशन होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो हमारे जुडिशरी ने ही इस रोल को प्ले किया है। सो वी सी 70 years have passed since the implementation of the constitution, and in these 70 years so many changes occurred in our society, है ना। इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चेंजेस व्हाट वी सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली। Why the constitution which is made 70 years ago, it is still as effective and as relevant as it was before 50 years. आज भी वो उतना ही इफेक्टिव है, आज भी वो उतना ही यूजफुल है, रेलिवेंट है। क्यों? बिकॉज इट्स डायनामिक होना। अगर एक पर्सन के हिसाब से भी हम देखते हैं, वी सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल ओनली, व्हाट वी फाइंड दैट इट इज रियली vital for an individual to be dynamic. The moment we become stagnant, what happens? Voices starts to grow, है ना। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लें, बहता हुआ पानी और ठहरा हुआ पानी, जैसे स्टैग्नेंट वाटर एंड फ्लोइंग वाटर। बहता हुआ पानी क्या होता है, वो कभी गंदा नहीं होता है। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो हमेशा थोड़े ही दिनों में, साफ पानी भी अगर हम स्टैग्नेंट छोड़ देंगे तो 1, 2 दिन 4 दिन में वो पानी गंदी हो जाएगी। क्यों? स्टैग्नेंसी जिस चीज़ में आ जाती है वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही सबसे बड़ा क्वालिटी है कि वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो डायनामिक है। जैसे सिचुएशंस बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये भी बदल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया उसका इतना एक्सपेंशन हो गया, वो आज एक्सपैंड होकर के उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ इंक्लूड हो गया।
तो it is changing according to the situation, because it is not possible for the constitution makers to foresee all the situation and circumstances which are going to be there in a country in future. It is not possible. तो ये जरूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता रहे, ताकि जो भी नए सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं उसके अनुसार वो अपने आप को चेंज कर सके. एंड दैट इज द नीड ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम डेमोक्रेटिक ओनली बाय इवॉल्विंग इटसेल्फ. अगर नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, the constitution is not evolving according to the changed circumstances, then it may lead to the destruction of democracy in the country. है ना? तो constitution का काम क्या है? constitution क्यों बनाते हैं? The main purpose of constitution is to protect democracy. Democracy cannot be there in the absence of constitution, because constitution में rules लिखे होते हैं and the government is supposed to follow the rules, and when the government is following the rules, it becomes democratic, है ना? तो जब हम arbitrarily अपने पावर को यूज करते हैं तो वो हमारा डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेन पर्पस है वो ये है कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, रूल्स के अकॉर्डिंगली काम होना, नॉट आर्बिट्रेरली कुछ भी काम नहीं होगा. Everything will be done according to the rules. ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी काम है कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करता हुआ चले. अब ऐसी चीजें हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि हमारी ही कंट्री में जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से 24th अमेंडमेंट को लाया गया बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये जो अमेंडमेंट आया वो अगर रह जाता, ठीक है, केशवानंद भारती का मैटर नहीं आता, तो क्या होता? कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाती, बिकॉज आपने तो पार्लियामेंट ने तो कह दिया कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बचता कहाँ? जब भी किसी के भी पास पावर आता है ना, पावर एक ऐसी चीज है जिसको कि हमेशा मिसयूज किया जाता है. पावर करप्ट्स, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. This is the one of the famous saying of this Lord Acton, who was a great political thinker. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. तो ये पावर की क्वालिटी होती है कि जब भी वो जिसके पास भी जाता है ना, वो उसको करप्ट बना देता है. जब तक हम पावरफुल पोजीशन में नहीं होते हैं तब तक हम आइडियलिस्टिक होते हैं, बट द मोमेंट वी गेट द पावर, हमारे अंदर वो चीज़ें आने लगती हैं कि कैसे इस पावर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए. और ये ह्यूमन नेचर होता है. इट्स नॉट समथिंग कि किसी के अंदर ये बुराई होती है, ये ह्यूमन नेचर है. एंड दैट इज द नीड टू रिस्ट्रिक्ट द पावर. क्यों पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है? इसीलिए क्योंकि पावर की ये क्वालिटी होती है कि वो आपको करप्ट बनाएगा. तो हम करप्ट नहीं बने, कैसे नहीं बनेंगे? पावरफुल होते हुए भी हम करप्ट नहीं बनेंगे. क्यों? जब हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना. हम पावरफुल हैं बट स्टिल आई एम नॉट मिसयूजिंग द पावर बिकॉज आई हैव टू फॉलो द रूल्स. तो दैट इज द थिंग. यही इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि आपको पावर भी दिया जा रहा है, बट यू हैव टू यूज दैट पावर विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स. यू कैन नॉट यूज इट इन एन आर्बिट्ररी मैनर, है ना. तो हमने क्या देखा, जो अभी फिर से हम उसी पे आएंगे, 24th अमेंडमेंट. 24th अमेंडमेंट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है. ठीक है, अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता तो क्या होता? तो होता ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के हाथ का एक खिलौना बन के रह जाती. और पार्लियामेंट इज नॉट समथिंग कि कोई जिसमें कि किसी तरह की कोई पार्टीशन वाली काम नहीं होती. पार्लियामेंट तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, है ना. जिस किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी होता है, पार्लियामेंट उसी के अकॉर्डिंगली चलती है. अगर लोकसभा में तो देखो होना ही होना है मेजॉरिटी,
जो रूलिंग पार्टी है ना। तो लोकसभा में तो मेजोरिटी है, और सपोज करो कि राज्यसभा में भी अगर उसी पार्टी की मेजोरिटी है, जैसा कि हमारे यहाँ कांग्रेस का जो शुरू में रूल था उसमें तो दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों में कांग्रेस की मेजोरिटी थी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्लियामेंट चाहेगी तो फिर किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है, और अगर किसी भी पार्ट को बदल सकती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड हो गया तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमारा डेमोक्रेसी भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। पार्लियामेंट ने अपने तरफ से एफर्ट किया कि हम अपनी सुप्रीमेसी बना लें, लेकिन जुडिशरी के इंटरवेंशन के कारण what happened that this supremacy of parliament was curtailed. नहीं, you are not supreme, the parliament is not supreme, neither the judiciary is supreme. Who is the supreme? The constitution is the supreme, as I told you in the previous class also. That is the most important thing. You can use your power, everyone can use his or her power, but that power should be used within a framework of rule. ये बहुत जरूरी है। और जुडिशियरी जो थी उसने ये बताया कि आपको एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है, आप अपने हिसाब से आर्बिट्रेरली नहीं काम कर सकते, बस ये कह के कि हमने तो जो काम किया है दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। दिस इज अ वेरी गुड बेसिस, है ना, बहुत अच्छा बेसिस ये होता है कि हम तो पुअर के लिए काम कर रहे हैं, और पुअर के लिए काम करने के लिए हम रूल्स को वो कर सकते हैं, रूल्स के बिना भी काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क फॉर द पुअर देन फॉलोइंग द रूल। नो, ये गलत है कहना। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट फॉलोइंग द रूल is itself democracy. Democracy will be destructed if rules are not followed. तो हो सकता है कि एक बार आपने बड़े अच्छे रीजन से कि भाई पुअर के लिए हमको काम करना है, तो हम रूल्स के बियॉन्ड जाकर के पुअर के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर आपको ये अलाउ मिल गया, यू आर गिवन दिस परमिशन बाय एनी अथॉरिटी। सपोज जो हमारे यहाँ ही चल रहा था कि पार्लियामेंट जो है वो तो लैंडलेस जो लेबरर्स हैं उनके लिए काम कर रही थी, उनको जमीन दिलवा रही थी, है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जुडिशरी भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता कि भाई वो तो प्रो पुअर काम है तो करने दीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाता तो एक बार ही तो अच्छे रीजन से यूज होता, दो बार ही अच्छे रीजन से यूज होता, लेकिन अल्टीमेटली इट मस्ट बी मिसयूज्ड। ये मिसयूज तो होना ही होता। दिस इज सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह से जिन कंट्रीज में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश होती है, बट दैट डेमोक्रेटिक सेटअप इज नॉट एबल टू वर्क। क्यों? सबवर्जन हो जाता है। क्यों? वो रूल्स के अंदर रहते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर देते हैं। हिटलर इसका एग्जाम्पल है। हिटलर ने वेमर रिपब्लिक के अंदर रहते हुए सारे रूल्स को फॉलो करते हुए उसने वो ले आया, अपना डिक्टेटरशिप ले आया। इसी तरह से अफ्रीका और एशिया के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द डेमोक्रेटिक सेटअप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट बी कंटिन्यूड। डिक्टेटरशिप अरोज इन ऑल दीज मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। तो ये इससे बचाने के लिए अगर हमारे भी कंट्री में अगर उस समय जो कंडीशंस आ रही थी 1970s में, अगर हमारी जुडिशरी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता और था, और खतरा हुआ भी। इमरजेंसी, जिसके बारे में आप लोग नेक्स्ट 12th में पढ़ेंगे कि किस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, और दैट वाज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। एक्चुअली उस पीरियड में जो कि 18 मंथ्स की डेमोक्रेसी इमरजेंसी थी, हमारे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी।
तो लेकिन फिर से हमने उसको रीस्टैब्लिश कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट समथिंग विच इज डेड, है ना। और जो केशवानंद भारती के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, वो उसका जो वर्डिक्ट है वो ये कहता है कि जो दिस बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, फिर कहाँ से आया। तो what is important not to read the text of the constitution, that is not sufficient to read the text of the constitution. What is more important to understand the spirit of the constitution. constitution के spirit को समझिए। जब हम उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं तो उसकी स्पिरिट भी होगी ना। तो उस स्पिरिट को आप समझिए कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते क्या थे। डोंट गो बाय द टेक्स्ट, डोंट गो बाय द लेटर्स ओनली, you will have to understand the spirit of the constitution and that spirit is the doctrine of basic structure। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि जो चीजें हमें दिख रही हैं और जो चीजें नहीं दिख रही हैं उनमें क्या उनके बीच का रिलेशन है ना। तो हमें उस कोई भी जो चीज़ें दिख रही हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो लेटर्स हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि वो जो लिखा गया प्रोविज़न उसके पीछे इंटेंशन क्या था। व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें हम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको कल हम डिस्कस करते हुए फिर आगे करेंगे। ओके।